Assalamualaikum students, it's our second lecture of class 10th chapter number 1 problem solving. In our previous video we discussed the definition of problem solving and we explained the steps of problem solving. We discussed the 3 steps of problem solving, that was problem identification, specify requirements and analyze the problem. Now in this video we will discuss other 3 steps of problem solving. Problem solving, we had studied the definition that if any problem arises, you want to some particular and appropriate solution of that problem. So we need different steps to solve your problem. First step was problem identification, in which we basically identify that what is our problem actually is. In second step, we specify all the requirements related to your problem, and in third step we analyze the problem, means to say that we divide our problem into small sub problems. Today we will discuss about the design algorithm and draw flow chart. That is our fourth step of problem solving. Now you can see over here and in your books also that design algorithm and flow chart. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को हम एनालाइज कर चुके होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर चुके होते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं. उसके बाद जो पहला काम इम्पॉर्टेंट हमने करना होता है वो होता है कि हमने अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है. एंड व्हाट एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ फॉलोड यू कैन मूव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टास्क. आप क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम को स्मॉल स्टेप्स में लिख देते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करके लिख देते हो. तो डिज़ाइन आप करते हो अपना एल्गोरिदम में राइट द एल्गोरिदम ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम आपके पास आती है उसका आप एल्गोरिदम लिख देते हो. And it is one of the most difficult tasks to do. Algorithm designing is one of the most difficult tasks to do. Why it is difficult? Because before this fourth step you have not written anything related to your problem except you have analyzed the problem in your mind. You haven't do any paperwork of your problem. In the third step you can see over here that when we are designing an algorithm we need 3 steps. That is one of what are the inputs, what will be the processing, how you will do the processing of that problem which you have arise, and what will be the output of that problem. Okay, so this was the designing algorithm. And once we have designed the algorithm we will perform desk checking. And what is desk checking? Desk checking क्या है? Desk checking is the process of carefully observing the working of an algorithm. अब वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम का क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि जो आपने एल्गोरिदम लिखा है उस एल्गोरिदम में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, या वो एल्गोरिदम उसका स्टेप बाय स्टेप उसका फ्लो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा. इस सारी प्रोसीजर को देखने के लिए आप डेस्क चेकिंग का प्रोसेस चलाते हो. ओके, नाउ आफ्टर यू हैव डिजाइन द एल्गोरिदम द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट. After writing algorithm you will draw its flowchart. Flowchart क्या है? Flowchart is a pictorial representation. मतलब जो आपने स्टेप की फॉर्म में लिखा होता है उसको आप पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो. ओके, सो दिस वाज द फोर्थ स्टेप विच वाज ऑफ डिजाइनिंग algorithm and draw flowchart. Moving towards the next step which is of writing the program. Fifth step is writing the program. That means coding. अब आपने इस स्टेप में क्या करना है, आपने अपने प्रोग्राम की कोडिंग करनी है. आपने बताना है कि जो एल्गोरिदम आपने बनाया था उसको अगर आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो किस तरह कन्वर्ट करोगे. कोडिंग के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, C++, C#, .NET, जावा, विजुअल बेसिक एट्सेट्रा. तो जिस भी आप अपनी प्रॉब्लम को जिस भी तरह से कोडिंग कर रहे हो आप उससे उस लैंग्वेज पे स्किल हासिल करते हो. सबसे पहले यू शुड बी स्किल्ड ऑन दैट लैंग्वेज. तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो एल्गोरिदम आपने बनाया था अपने पिछले स्टेप में, मतलब स्टेप 4 में, दैट वाज ऑफ डिजाइनिंग एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट. अब आप क्या करोगे, अपनी एल्गोरिदम पे कोडिंग अप्लाई करोगे, कोड लिखोगे उसके डिफरेंट छोटे छोटे कि आपका जो प्रोग्राम है उसने कैसे चलना है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व होनी है. Okay, so what is the writing the program? Actually you needs to understand the syntax of that language in which you are writing the program. आपने अपने grammatical rules जो है उनको follow करते हुए आपने किसी भी language को में अपना प्रोग्राम लिखना है. And grammatical rules to write a program is referred as syntax of that language. Similar to the English language syntax, Urdu language syntax, you write the grammatical rules to write a program is referred as syntax of that language.
Next sixth step is the testing and debug the program. Test and debug the program. Test and debug में क्या होता है कि आप अपनी प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हो, डीबगिंग करते हो कि जो आपने कोड बनाया है वो कोड एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो काम कर रहा है तो उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, कोई फ्लॉज तो नहीं है। डीबगिंग के अंदर हम यहाँ क्या कहते हैं, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन योर प्रोग्राम। जो भी आपने अपना प्रोग्राम बनाया है, अगर उसके अंदर से आपने कोई एरर फाइंड आउट करने हैं या उन एरर्स को रिमूव करना है तो आप उस पर डीबगिंग का प्रोसेस चलाओगे। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। 3 तरह के एरर्स आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं जो कि आपने स्टेप 4 में प्रोग्राम लिखा बाय अप्लाइंग द कोडिंग टेक्निक। तो 3 तरह के एरर्स हैं। नंबर 1 इज सिंटेक्स एरर, नंबर 2 इज लॉजिकल एरर एंड नंबर 3 इज रन टाइम एरर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। First we will discuss about the syntax error. Syntax error क्या होता है? As we have already discussed that what is meant by the syntax of the language. Syntax when grammatical rules are not followed. कब syntax error आएगा आपके प्रोग्राम में? When you will not follow the grammatical rules. Grammatical rules का मतलब होता है जैसे English language में if you have not followed the rules of grammar, you can't write a complete sensible sentence. Similarly, in these languages, you needs to follow the grammatical rules. For example, you have written print instead of print. आपने टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये सिंटेक्स की मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि प्रिंट एक कमांड है, उस प्रिंट की कमांड को एज इट इज लिखना था, आपने आर मिस कर दिया, प्रिंट लिख दिया, तो ये जो एरर आएगा ये सिंटेक्स एरर होगा। नेक्स्ट इज इसकी एग्जांपल है कि इफ यू हैव असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ वेरिएबल, ऐसा नहीं हो सकता, आप 5 इज इक्वल टू काउंट नहीं लिख सकते। यू कैन राइट काउंट इज इक्वल टू 5। काउंट मीन्स फॉर एग्जांपल यू हैव कंसीडर्ड अ वेरिएबल काउंट एंड यू हैव असाइंड अ वैल्यू 5, तो आप 5 को काउंट असाइन नहीं कर सकते, दैट विल बी कंसीडर्ड अ सिंटैक्स एरर। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज द रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन। मतलब आप अपने प्रोग्राम में इस तरह से कोई मैसेज या कोई ऐसी लाइन लिख देते हो जहां पर इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मतलब नॉर्मली हम वो चीज़ अपनी वर्किंग में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, आपने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय 0, तो ये कोई रन टाइम एरर आ जाएगा, ये कोई इलीगल ऑपरेशन है ही नहीं। दैट इज वाई इलीगल ऑपरेशन जब कभी भी परफॉर्म होगा तो रन टाइम एरर आएगा। और दूसरा ये कब डिटेक्ट होता है? इट इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब आप अपना प्रोग्राम चला रहे होते हो तब ये रन टाइम एरर डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट एरर इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक। मतलब आपने अपने प्रोग्राम में लॉजिक ही गलत फॉलो किया, आप अपने प्रोग्राम को अच्छी तरह से देख ही नहीं सके कि वेरिएबल्स कहाँ साइन होने थे, उनकी वैल्यूज कहाँ साइन होनी थी। तो इस तरह की जब एरर्स आएंगे तो ये लॉजिकल एरर्स आएंगे, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ एरर टू लोकेट। आप इसे लोकेट बहुत मुश्किल से कर पाते हो, एंड दिस इज आइडेंटिफाइड बाय जस्ट वॉचिंग द रॉन्ग आउटपुट एंड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जब आपका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा होता और आप केयरफुल ऑब्जर्व करते हो अपने प्रोग्राम को कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की थी, तब आप लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो ये जो एक पूरा क्वेश्चन है ये आपका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर एंड एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ डीबगिंग. In next video we will discuss the last 3 steps, that is implementation of the program, maintain and update the program and document the program. Thank you.